Hello friends, good evening. My name is Maipal Singh. I welcome you on Guidely YouTube channel. So आज की जो क्लास है उसमें हम हाई लेवल अर्थमेटिक के क्वेश्चंस करेंगे और अर्थमेटिक के क्वेश्चंस के साथ साथ हम डेटा सफिशिएंसी करेंगे. डेटा सफिशिएंसी के साथ हम क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे. तो 5 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच टॉपिक वी विल डू इन दिस सेशन. सो एक बार आप मुझे बताइए कि आपको वॉइस क्लियरली सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा. आपको वॉइस क्लियरली सुनाई देना चाहिए और सारी चीजें दिखाई देनी चाहिए, राइट. तो सबसे पहला काम क्या है, वॉइस क्लियरली सुनाई देना चाहिए. आई होप आपको वॉइस क्लियरली सुनाई दे रहा होगा. सबको सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है? जल्दी से बताइए. और सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ सो दैट सबको पता लगे कि आज का जो क्लास है वो आपका स्टार्ट हो चुका है, राइट. सो जल्दी से आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें. हाई लेवल के क्वेश्चंस करने वाले हैं जिसमें से 5 अर्थमेटिक के क्वेश्चन होंगे, 5 आपके डेटा सफिशिएंसी होंगे, 5 क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे एंड ऑल आर मेंस बेस्ड क्वेश्चन. और आपको मैं आज बताऊंगा कि किस तरीके से हम कुछ क्वेश्चंस को बिना सॉल्व किए भी कर सकते हैं, राइट. सो दिस इज द पार्ट and you can buy the Guidely Express video course in 2249, right. And you can also buy this part platinum package which is now available for 2 days in 305 only, which was earlier available in 555. And you can also call in this number for the guidance, and you can apply my code MAHI20 MAHI20 to get the 20% extra discount. You can share with all your friends so that they can get the 20% extra discount on every live batch or express video course. So this is the first question which is on the screen. This is the first question which is on the screen. Just find out the answer. जल्दी से आप लोग सॉल्व करिए. पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है और सभी लोग वीडियो को शेयर कर दो एक बार जल्दी से. वी ऑल द क्वेश्चंस आर ऑफ मेंस लेवल. यू कैन लुक फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन ओनली. So first question is related to the fill in the blanks. Good evening everyone. Good evening Abhishek. Good evening Satyam, Niranjan, Shilpa, Saurabh, Sarita, Satyam, Aniket, and everyone. Pavitra, Shreya, Abhilasha, Aman, everyone. A very very good evening. First question is on the screen. So solve the question. And share the video with everyone so that everyone can good evening Anand, everyone can log into their mobiles or laptop and can see the video. So चलिए क्वेश्चन को पहले को मैं सॉल्व करता हूं. आपको दे रखा है बिमन कैन कंप्लीट द वर्क इन 25 days. सो बिमन कैन कंप्लीट द वर्क इन 25 days, right. With the help of Sohan he can complete. So that means Biman plus Sohan can complete the work in X days. This is given. ये आपको given नहीं है ना, तो I can take it as X. Sohan and Milan together can complete in 10 days. Sohan plus Milan, they can complete the work in 10 days. Now Milan alone can complete the work. Let us suppose this is Y. So Milan in Y. So this is the part. और आपको ये पूछा गया है what is the value of y and what is the value of x. So which of the following will satisfy the equation, right. So with the help of options we can assume the part, but how should we choose the options? This is also the logical part. How should we choose the options, right. So if I take, let us suppose this is x and for Milan it is coming as y. So if I take the LCM of these two values, then I can assume that 100 unit is the work. I can assume, right. So this person will complete the work, this person will do 4 unit work and these two person will complete the work by doing 10 unit of the work in 1 day, right. So अब आपको यहां पर क्या है कि मिलन के लिए कैलकुलेशन करनी है, राइट. मिलन के लिए कैलकुलेशन करना है तो मिलन का पार्ट कहां पर दे रखा है, y की वैल्यू, सेकंड वैल्यू इज द ऑफ मिलन, सेकंड वैल्यू इज ऑफ मिलन. So I will first check the options which are the multiple of 100, which will divide 100. So this will not divide 100 and this will not divide 100. So I will check 20 first. I will check this part first. So I will check this part first. If I take this is and 20, so ये क्या करेगा आपका 5 यूनिट काम करेगा, ये 5 यूनिट काम करेगा.
तो अगर ये वाला बंदा आपका 5 यूनिट काम करता है तो सोहन भी 5 यूनिट काम करेगा, राइट। सोहन अगर 5 यूनिट करता है, राइट, और ये वाला बंदा 4 यूनिट कर रहा है, ये 4 यूनिट कर रहा है और ये 5 यूनिट कर रहा है, तो आपका नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, 100 डिवाइड बाय, अब देखो इसका 4 यूनिट है, इसका 5 यूनिट है, तो 100 डिवाइड बाय 9 होना चाहिए ना बोथ के लिए, तो 100 डिवाइड बाय 9 है, दैट मीन्स दिस इज सफिशिएंट। सो हम कैसे चूज करते हैं ऑप्शंस को वो भी आपको समझ में आना चाहिए, हाउ वी शुड चूज द ऑप्शंस, राइट। सो अगर नहीं होता तो आई विल चेक दिस वन, अगर नहीं होता तो आई विल चेक दिस वन, मैं पहले उनको चेक नहीं करूंगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, A and B start working on alternate days. If A starts the work, they took 21 whole 4/5 days to complete the work. If B starts the work, they took 21 whole 5/6 days. Find how many days it will take to complete the work if they worked together. If they work together. Now this is logical question. If your basics are not clear, you will not be able to do this question. राइट हाँ, मोर देन वन ऑप्शन सही हो सकते हैं डेफिनेटली अमन, बट आपको ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। देखो इफ मोर देन वन ऑप्शंस आर अवेलेबल, तो एक ऑप्शन ऐसा कुछ होना चाहिए था जिसमें मोर देन वन लिखा होता, लाइक ए एंड बी टुगेदर, बी और सी टुगेदर। सो इस वाले रेशियो में, इस वाले पार्ट में हम पर्टिकुलरली क्या देखेंगे, एक ही ऑप्शन चेक कर रहे हैं। अदरवाइज मोर देन वन ऑप्शन वाले में ऑप्शंस अलग टाइप से आते हैं, या फिर कहीं ना कहीं ये भी लिखा हो सकता था कि बी एंड ए कहीं पर, तो ऐसे होता, राइट। सो इस टाइप के ऑप्शंस में मोर देन वन रेयरली मिलेगा आपको, 99% चांसेस आर नॉट देयर। हाँ, आईबीपीएस गाइड का जो टेस्ट सीरीज है अभी वो आपको 305 रुपीज में अवेलेबल है, एंड टेस्ट सीरीज इज गुड। अगर आपको मीडियम टू डिफिकल्ट लेवल चाहिए तो आईबीपीएस गाइड का खरीद सकते हैं, इजी लेवल चाहिए तो मत खरीदिए, दिस इज माई ओपिनियन, राइट। सो अगर आपको मीडियम टू हाई लेवल चाहिए तो यू कैन गो फॉर आईबीपीएस डेफिनेटली। If your basics are clear, if your logics are clear, then only you can do this question within 40 seconds. Within 40 seconds. Within 40 seconds. If your basics are not clear, you will not be able to solve this question. I can guarantee this part. Right? सर जब एकांतर दे खत्म तब, यार ये क्या लिखा आपने, समझ में नहीं आया। वैकल्पिक दिनों में, लाइक ए एंड बी काम कर रहे हैं, ए एंड बी वर्क्स, तो इफ द फर्स्ट केस इज इफ ए स्टार्ट द वर्क, दैट मींस ए एंड ए वर्क, देन बी वर्क, देन ए वर्क, देन बी वर्क। इफ दिस goes, then they took 21 4/5 days. If this works like B work, then A work, B work, then A work, then they took 21 5/6 days, right? 21 days तो ने किया है, okay? So now you can relate this value like this. Let us suppose, अब बहुत ध्यान से सुन लो, आपने जितना करना था वो कर लिया, राइट। अब ध्यान से सुनना। Let us suppose A and B are working like this. A start on first day and second day B is working, then third day A is working, then fourth day. That means we can assume this is one cycle. And if the work goes on 21 4/5 days, that means 10 cycles were completely complete. 10 cycles were completely complete. I can say that. I can completely say that if 10 cycles are completely complete, that means in next cycle A will come, then again B will come. On 21st day A will come, then again B will come. If the work is completed by B in 4/5 day, that means ये जो 5 यूनिट है ये काम करने की क्षमता रही होगी, किसकी नहीं रही होगी, अदरवाइज तो पूरा दिन लगता। आदर्श ने एकदम सही आंसर दिया, परफेक्ट है आदर्श, परफेक्ट। यही मैंने बोला था, अगर आपके लॉजिक क्लियर है तभी आंसर हो सकता है। अब यहां पर देखो, अगर बी स्टार्ट करता है, इफ वर्क इज स्टार्टेड बाय बी, देन दिस मस्ट बी लाइक ए एंड बी आर वर्किंग टुगेदर, तो 1 cycle ऑफ
one cycle is of 2 days and 10 cycle will complete. If 10 cycle will complete, then again on 21st day B will come, then on 22nd day जो पूरा नहीं हुआ उस दिन कौन आएगा, A आएगा. And A can complete in 5/6, that means A can complete 6 unit of the work in one day, right? मैंने देखा नहीं होगा निरंजन. सौरभ का भी आंसर आ रखा है, निरंजन का मैंने देखा नहीं. So now you can say that B can now you can say that the efficiency of A is per day is 6 unit and B का कितना है 5 यूनिट और A का कितना आ गया 6 यूनिट पर डे. सो आप डायरेक्टली ये देखो कि डेली के डेली अगर ये 6 यूनिट और ये 5 यूनिट कर रहा है तो लास्ट में 11 होना चाहिए, तो यही आंसर होगा. इसमें तो कोई डाउट नहीं है. इतना ही करते हम आंसर निकाल सकते थे. विदिन 20 सेकेंड वी कैन फाइंड आउट द आंसर. दूसरा, अगर मान के चलो 11 के साथ 2 ऑप्शन आ जाते तो आप टोटल वर्क भी निकाल सकते हैं. टोटल वर्क कैसे निकाल सकते हैं कि देखो 10-10 दिन तक तो दोनों ने काम किया है ना. पहला केस ले लो, 10 दिन तक ए ने काम किया, 10 दिन तक बी ने काम किया, फिर ए आ गया 21st डे में, फिर बी आया कितने दिन 4/5 डेज के लिए, बी आया 4/5 डेज के लिए. तो 4/5 डे में बी ने कितना किया होगा, केवल और केवल 4 यूनिट किया होगा. और इसने 10 दिन में और इसने 10 दिन में, और इसका 21st डे, दैट मींस ए ने आपका 11 डेज वर्क किया, तो ए ने आपका 66 यूनिट वर्क किया होगा, बी ने आपका कितना किया होगा, यहां पर 50 यूनिट किया होगा, और 4 यूनिट लास्ट दिन कर रहा है इस वाले दिन, तो 54 हो गया. तो 120 टोटल हो गया, डिवाइड बाय 11. तो टोटल भी कर सकते थे, राइट? आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट. सो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी लॉजिकल. समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए. अगेन दिस क्वेश्चन इज अगेन अ लॉजिकल क्वेश्चन. आप अगर ध्यान से करेंगे तो ही आपका जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा. हाँ, नन ऑफ दीज भी है, लेकिन नन ऑफ दीज के लिए फिर मैंने बोला कि अगर मान के चलो आई हैव टू टेक दिस रिस्क इन द एग्जामिनेशन, बिकॉज इन एग्जामिनेशन आउट ऑफ 30 क्वेश्चन और 40 क्वेश्चन यू विल रेयरली गेट एनी नन ऑफ दीज आंसर. You can get one answer as a none of these or 2 answer as a none of these. So I have to be courageous enough to take this step. यार ये तुम एकांतर लिख रहे हो ना, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा. मैं इतना हिंदी में ना इतना कंफर्टेबल नहीं हूं. तो आप ये कह रहे हो कि इसका मतलब क्या होता है. देखो यहां पर अगर ए काम पहले दिन कर रहा है, फिर बी काम पहले दिन, बी दूसरे दिन कर रहा है, फिर ए कर रहा है, फिर बी कर रहा है, ऐसे साइकिल खत्म हो रही है, राइट? ठीक है. अगर ए बी सी काम करें उसमें मीन्स क्या होगा यार? एक्चुअल में मैं ना आपका क्वेश्चन समझ नहीं पा रहा हूं. आप अगर डायरेक्टली लिखेंगे तो समझ में आएगा मुझे. और आप ना मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो. मैं आपका ये प्रॉब्लम जो भी एक्चुअल क्वेश्चन हो वो मुझे भेज देना, राइट? चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सो देखिए पहले दिन क्या हो रहा है, आपका मुन्ना और नीरज है. तो फर्स्ट टाइम में मुन्ना ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, के टाइम्स, और नीरज ने कितना किया है, के प्लस 20,000, राइट? के प्लस 20,000. समझ में आ रहा है? अब के और के प्लस 20,000 आफ्टर 1 ईयर मुन्ना, तो 1 साल के लिए तो ये सेम रहा, तो इंटू 1 और इंटू 1 कर लेते हैं, इंटू 1 और इंटू 1 कर लेते हैं. और इसने क्या किया, 12,000 मोर कर दिया, के प्लस 12,000. अब ये कितने साल के लिए रहा, मोर, ये 1 साल के बाद है. आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 मोर ईयर लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ना, आफ्टर 1 मोर ईयर. अब सनी भाई साहब आ रहे हैं. अब सनी ने कितना किया, के प्लस 60,000, राइट? के प्लस 60,000. तो सनी ने तो केवल 1 साल के लिए किया, इसने पूरे 3 साल के लिए किया, और ये वाला पार्ट इसने 2 साल के लिए किया होगा. समझ में आ रहा है? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट? अब इसको मंथ में मत करना, क्योंकि ईयर्स के फॉर्मेट में दे रखा है, तो ईयर्स के फॉर्मेट में ही रखो इसको. अगर ईयर्स के फॉर्मेट में रखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, राइट? अब आप देखिए कि के और 2K, तो इसका जो पार्ट आ गया वो क्या आ गया, 3K प्लस 24,000 आ गया कि नहीं आ गया? और इसका पार्ट कितना आ गया, के 3K प्लस 60,000 आ गया, राइट? और इसका कितना आ गया, के प्लस 60,000 आ गया.
तो अब आपको दे रखा है कि टोटल जो हुआ है वो 2,35,000 का है और केवल मुन्ना का 85,000 है, राइट। केवल मुन्ना का क्या है, 85,000 है। तो अब आप देखो कि यहां पर मैं आपके लिए ये वाला पार्ट लिख रहा हूं कि अगर टोटल देखो, टोटल क्या है, 7K प्लस 120 और 24, तो टोटल है आपके पास 7K प्लस 144,000 अपॉन में मुन्ना का कितना है, केवल 3K प्लस 24,000। अब देखो यहां से आप कैलकुलेशन को रिड्यूस कर सकते थे। देखो ये तो 1 इंटू 2 हो रहा है, तो इसका तो अब कोई जरूरत है नहीं, तो इसको मैं रब कर रहा हूं। अब इस वाले कैलकुलेशन को भी जब आप करते ना तो बड़े आराम से कर सकते थे। कैसे करना था वो मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए इस कैलकुलेशन को करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। तो यहां पर आपने क्या लिखा, 7K प्लस 144,000 अपॉन में लिखा 3K प्लस 24,000 और ये वाला पार्ट क्या आएगा, 235,000 अपॉन में 85,000। तो 000 7 से ये 5 से ये कितना टाइम्स, 47 टाइम्स, 5 से ये 17 टाइम्स। तो अब आप देखो कि ये 17 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 119K आ जाएगा प्लस 17 इंटू 144,000 को एज इट इज रखते हैं और ये क्या आ जाएगा, 47 इंटू क्या होता है आपका, 47 इंटू ये आपका आ जाएगा 151, राइट, 131 सॉरी। ये वाला जो पार्ट है अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1 and 2 कैरी फॉरवर्ड हो गया, तो 141K प्लस 47 इंटू 24,000, राइट। अब आप देखो कि अगर मैं इस वाले पार्ट को इधर ले जाता हूं तो ये 22K आएगा इज इक्वल टू, अब देखो इसमें 144,000 का मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ 24,000 है, राइट। तो इसमें दोनों में 24,000 कॉमन है कि नहीं है, तो 24,000 कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये क्या बचेगा आपका, 102 माइनस 47, 102 माइनस 47। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 102 माइनस 47 कितना होता है, 55। अब 11 से 2 बार कट हुआ, 11 से 5 बार कट हुआ, 2 से ये 12 बार, तो सीधा 60,000 आ गया, राइट। तो आपका आंसर क्या आ रहा है, 60,000। आपका आंसर क्या आ रहा है, 60,000। हाँ 141 ही लिखा है मैंने, 141। तो सीधा आंसर क्या आ गया आपका, 60,000 आया। तो 60,000, अब आपसे के की वैल्यू पूछ रहा था ना, तो के की वैल्यू क्या आ गई, 60,000 आई। 72,000 किसी का निकला था, वो गलत था, राइट। अब देखिए एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है IBPSPO मेंस 2018 का, अमेजिंग क्वेश्चन है, मजा आएगा आपको सॉल्व करने में। तो मैंने आपको बताया ना कि देखो मेरे को मल्टीप्लाई नहीं करना है साथ में। अगर मेरे को 24,000 नीचे दिख रहा था और 144,000 ऊपर दिख रहा था तो मैंने उनको मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने उसका कॉमन पार्ट निकाला। और कॉमन पार्ट निकालने से क्या हुआ, कॉमन पार्ट निकालने से आपका कैलकुलेशन रिड्यूस हुआ है। कैलकुलेशन क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। 7K प्लस इज इक्वल टू, ऐसे कैसे निकाल दोगे डायरेक्टली, ऐसे नहीं निकलेगा ना, ऐसे नहीं निकलेगा भाई, कंपैरिजन करना पड़ेगा, ऐसे नहीं निकलेगा, ठीक है। अगर मान के चलो ऐसे निकालना होता तो फिर गलत हो जाएगा ना, किसी से कंपेयर तो करना पड़ेगा। ऐसे तो आप मुन्ना वाली वैल्यू से भी निकाल सकते थे, फिर तो 2 आंसर आते। आपको मुन्ना का भी पार्ट दे रखा था ना कि मुन्ना का 85,000 है, राइट, तो फिर तो 2 आंसर आ जाते। समझ में आ रहा है क्यों नहीं निकलेगा। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप लोगों ने हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में पढ़ लिया होगा, मैं केवल इंग्लिश में पहुंच जाता हूं। तो कह रहा है कि मानस के पास टोटल मिला के 15 बॉल्स हैं। तो आप मान के चलो कि ब्लू प्लस पिंक प्लस व्हाइट आपके पास क्या है, 15 बॉल है। हेलो परमानंद, आपके पास क्या है, ब्लू पिंक और व्हाइट आपके मिला के 15 बॉल है। नंबर ऑफ ईच बॉल इज डिफरेंट इन द बैग, मतलब नंबर ऑफ ईच बॉल, मतलब अगर आपके पास अगर ये 5 है ना तो ये 5 नहीं हो सकते, फिर ये 6 होने चाहिए और ये 4 होने चाहिए, तो अलग अलग नंबर होने चाहिए, अलग अलग नंबर होने चाहिए। निरंजन ने आंसर दिया है ई, दैट इज ABDE। ओके एक बार देख लेते हैं, देखते हैं। सो डिफरेंस बिटवीन द ब्लू बॉल टू पिंक, तो देखिए ब्लू माइनस पिंक, आपको क्या बोल रहा है यहाँ पर, ब्लू में से पिंक सब्सट्रैक्ट किया जाए और पिंक में से व्हाइट बॉल सब्सट्रैक्ट किया जाए तो दोनों की वैल्यू बराबर है। तो अगर आप P को इधर ले जाएं तो 2P इज इक्वल टू क्या आ रहा है आपके पास, B प्लस W आ रहा है। 2P इज इक्वल टू क्या आ रहा है, B प्लस W आ रहा है, राइट। श्रेया ने आंसर C दिया है, BCDE। चेक कर लेते हैं किसका आंसर सही आएगा। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है।
बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। अब कह रहा है कि व्हाइट प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग वन व्हाइट बॉल इज ग्रेटर देन। सो अगर मैं व्हाइट बॉल निकालूंगा तो मेरे पास व्हाइट बॉल कितनी है, W है, और टोटल बॉल कितनी है, पिंक प्लस ये कितना था, पिंक और ब्लू प्लस W। तो इसका जो पार्ट है ना वो 1/5 से ज्यादा आना चाहिए, राइट। अब देखो B प्लस W को आप 2P रख सकते हो कि नहीं रख सकते, तो W/3P हो जाएगा ना ये। तो इसका जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1/5 होना चाहिए। अब देखो टोटल बॉल कितनी है, टोटल बॉल तो 15 है ना, तो 15 को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, 3P। तो पिंक बॉल तो आपकी फिक्स हो गई ना, 5 होंगी, पिंक बॉल तो फिक्स हो गई ना, 5 होंगी। हाँ, डिफरेंस अगर मोड में लोगे बेटा, अगर डिफरेंस आपका मोड में लोगे तो ये जो नंबर, ये वाली कंडीशन जो है ना वो इनवैलिड हो जाएगी। अगर आप मान के चलो P माइनस इधर कर दो तो P कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर B इज इक्वल टू W हो जाएगा ना, B इज इक्वल टू W हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो वो आपका गलत हो जाएगा। ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये ऐसे ही पॉसिबल है। अगर आप P माइनस B करोगे, P से P कैंसिल आउट हो जाएगा, तो B इज इक्वल टू W या माइनस में चला जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखो कि सबसे पहले तो ये तो डेफिनेट है कि भाई आपके पास 3/15 अगर होता तभी 1/5 आएगा, और इससे बड़ा चाहिए तो ये तो आंसर नहीं हो सकता आपका, राइट। तो ये आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है, लेकिन ये भी आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि P की वैल्यू तो पहले से ही फिक्स है ना 5, और अगर आप W को भी 5 लोगे तो दोनों की वैल्यू क्या हो गई, बराबर हो गई ना। तो नंबर ऑफ बॉल्स तो डिफरेंट होनी चाहिए थी। अरे श्रीराम, यही तो मैं बता रहा हूं कि हाउ वी कैन से दैट, अगर मैं P माइनस W करूंगा, P माइनस B करूंगा और P माइनस W करूंगा, ये वाला पार्ट करूंगा, तो देखो P से P कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपका B इज इक्वल टू W नहीं आ जाएगा। तो क्या ये पॉसिबल है इससे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। तो आंसर क्या होगा, आंसर केवल 4 हो सकता है, या तो 7 हो सकता है, या तो 9 हो सकता है, यही दो आंसर हो सकते हैं, 5 भी नहीं हो सकता। समझ में आ गया। सो आंसर मस्ट बी बी। तो सबका गलत आ रहा था अभी तक। सो आंसर क्या आएगा, बी आएगा। अभी आपको समझ में आया, जो श्रीराम तुमको समझ में आया क्यों नहीं हो सकती वो कंडीशन। अब 5 क्यों नहीं हो सकता, ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए। हाँ, तो ट्रिकी क्वेश्चंस तो होते ही हैं एग्जाम में, मेंस में तो ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे। अब 5 वैल्यू क्यों नहीं हो सकती थी वो भी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि पिंक का फिक्स हो गया था कि वो 5 ही रहेगा, तो व्हाइट 5 नहीं हो सकते। एंड 4, 7, 9 is only possible value, right? Now Prem started the business with an investment, let us suppose this is X. After 3 months Kevin joined the business and with 3800, at the end of the year total profit is 35,000 and Kevin's share is मान के चलो Y. Which of the following satisfies the two blank part? How possible 4 comes, sir? How possible? Okay. So let us suppose we have already calculated that pink is always equal to 5. Pink is always equal to 5. Pink is always equal to 5. If I take white as in 4, then how many blue balls should be there? So it must be 6. So all are different, right? If I take, so white I can take 4, because if I take less than 3, so 3 upon 15 will give you 1/5 and the probability must be greater. So it can be 4 or 5 or 7 or 9, but 5 cannot be possible, because if I take white also 5, then all 3 will remain same. That is number of white ball, blue ball and all will be same. Next question आपकी स्क्रीन के सामने है. So next question must be, it cannot be 5, because if I take 5, all the numerical value of all the balls will be 5, and it must be greater than 3, because the probability was greater than 1/5, right? Now this question. So if I take Prem started business with an investment of X. After 3 months, Kevin joined the business. So X into 12 is in the ratio of 3800
into 9, and the total profit is 35,000. Total profit is 35,000, right? So total profit is 35,000. Now we have to calculate which value will come, which value will satisfy the value of x and y. So if I calculate these values, let us suppose if I take 3200 in place of x, if I take 3200 in place of x, so 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट? 20 से 20 कैंसिल आउट होगा. अब ये 2 से 19 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, 2 से ये 16 टाइम्स, और ये 3 से 4 टाइम्स, और ये आपका, so this will come like 64:57, which will not divide 35 into the integer values. So this is not possible. अब आप देखो कि 32,000 के साथ 1700 पॉसिबल नहीं है ना, तो 36,000 के साथ 18,000 तो फिर भी पॉसिबल नहीं था, राइट? I hope you are getting my point. So now the people are saying 2400, so we can go with 2400. So we will write 24 into 12 is in the ratio of 3800 into 9. So 20 से 20 cancel out हुआ. Now 3 से ये 3 times, 3 से ये 4 times, 3 से ये 8 times. So and 8 से 4 times and 19. So 16 is to 19. So 16 is to 19 is the addition 35. So it will completely divide this number. So answer must be D. I hope आपको समझ में आ रहा है. Answer must be D. Next question. Next question. Again the same type of question is there. 2850 is a multiple of that you can assume. 2850 is a multiple of 19. That is the perfect part. Now A and B entered into a, and B invested, let us suppose X. So this must be 2550 into, and after 4 months A double his investment after 4 month. So 4 month में तो ये सेम रहा, राइट? और डबल हो गया तो ये कितना हो जाएगा 5100 और into 4 6 month. और if they got total profit as in 12,200 after a year, A's profit is, A का profit यहाँ पर है, which of the following satisfy the two blanks. So B का investment में मान के चलता हूँ x into 12, right? X into 12. Let us suppose x into 12. और इसका टोटल कितना हो गया? इसका टोटल कितना होगा? देखो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5100 आता है, और तो 5100 तो ये 10,200 हो गया, एंड 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 0 6 and 30. So this must be like 40,800 is to 12 into x. If I cut this number by 12, this will become 3, and 3,400 is to x. 3,400 is to x. So now the total profit is 1,222. So this must be the multiple of like 62 into 2, or it can be like 61 into 2 और 122. तो इनका जो रेशियो बनेगा वो या तो 122 के मल्टीपल का कोई पार्ट बन सकता है या 61 बन सकता है, राइट? तो यहाँ पर अगर आप 25 पुट करोगे, यहाँ पर 2500 पुट करोगे ना, तो ये 25 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, तो ये वाला पार्ट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या करने वाले हो आप, x की जगह 2500 रखने वाले हो ना. 2500 से ये वाला पार्ट क्या बनाएगा 59, तो ये 59 तो कट नहीं होगा ना. ऐसे ये वाला पार्ट भी नहीं बनाने वाला, ये भी नहीं बनाने वाला. लेकिन जैसे ही 2700 रख लोगे, 2700 रखते ही 0 0 कैंसिल आउट होगा, और ये 34 और 27 61 बनाएगा. 61 कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है, राइट? सो आंसर मस्ट बी डी. समझ में आ रहा है ना हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस पार्ट लॉजिकली, कि अगर मैं 12 से कट कर लेता हूं तो 12 से कट करने के बाद क्या बनेगा ना, आपका प्रॉफिट का रेशियो क्या आएगा, 3400 इज टू x आएगा, और x की वैल्यू मैंने ये ले रखी थी. दैट मीन्स मेरे को x की जगह पर ये रखना है, और वो इसको कंप्लीटली डिवाइड करना चाहिए. तो यहां से ये नहीं हो रहे थे, सीधे सीधे पता लग रहा था आंसर डी होगा. आंसर डी होगा, नॉट बी. आंसर मस्ट बी डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब देखिए आपके जो डेटा सफिशियंसी के क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन 1 और स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर गिवन. सो नाउ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम द डेटा सफिशियंसी. Now solve this question. And data sufficiency questions are not for solving the actual question.
So all the questions are very conceptual and you can apply these concept in the main exam also if you know the basics. अच्छा, मैथ में इंटरेस्ट आने लगा है. हाँ. So I have read so many techniques and tricks of the Shakuntala Devi. पहले भी था, right? So बहुत पहले से उनकी बुक्स अवेलेबल हैं. मूवी देखने के बाद पता लगा आप लोगों को उनकी बुक्स बहुत पहले से अवेलेबल हैं. Both are needed. Okay. So the difference between the simple interest and compound interest is rupees 45. So second statement doesn't give any answer. First statement doesn't give any answer. If I take both the statement together, so the simple interest must be 24%, right? And compound interest must be 25.44%. So I can say 1.44% of principal is equal to 45. That means both statement are required. So the given data in both the statement are necessary to answer. तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, रीड करते ही पता लग रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Both are needed. After reading the question, we can say that both are needed because we need not to calculate the actual values. So all the answers given by you people are good, right? Now in this question, volume of the cone is given. So volume of the cone is given. तो वॉल्यूम क्या होता है आपका कोन का? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, राइट? सो यहाँ पर ना तो आपको रेडियस दे रखी है ना तो आपको हाइट दे रखी है. दैट मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट सफिशिएंट, राइट? नाउ द कर्व्ड सरफेस एरिया इज गिवन. नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है आपका? पाई आर एल होता है. तो सिंगल स्टेटमेंट कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल होता है. सिंगल स्टेटमेंट में आपको यहाँ पर हाइट तो दे रखा है, रेडियस नहीं दे रखा. तो अगेन दिस स्टेटमेंट इज नॉट सफिशिएंट. बट इफ आई कंबाइन बोथ द स्टेटमेंट, आई हैव हाइट एंड आई कैन calculate the radius also. So both the statement are needed. So again both the statement are needed. Next question. Either नहीं होगा. Both statements are needed because from the first statement we need radius and height both. But now from this statement the first statement is marked price upon CP is in the ratio of 5:4. And if the difference between discount and the profit earned, so discount minus profit is equal to 45, or it can be profit minus discount is equal to 45, right? So not possible. So answer cannot be determined, not sufficient. So answer must be D. Both are not sufficient. Next question. Both are not sufficient. Next question. What is the difference between the value of A and C? A plus B upon B is equal to 3/2. So we can take B is equal to 2 and A is equal to 1 and B is equal to 2. Right? हाँ. अब आपके पास यहाँ पर क्या दे रखा है? A upon C plus B is equal to 1/4. Right? A upon B is equal to 1/4. तो A is equal to 1, तो B is equal to 2, तो C is equal to 2. Now if I take this part as an 2, अगर इसको मैं 6 कर लेता हूं, इसको मैं 4 कर लेता हूं, तो ये डिफरेंट आंसर आएगा, राइट? इट इज नॉट गिविंग अ स्पेसिफिक आंसर. सो आंसर मस्ट बी, हाँ, आंसर मस्ट बी दिस वन, राइट? इट इज इन द रेशियो. अगर आपसे रेशियो पूछ रहा होता, if it has asked the ratio of A and C, then answer is E. But it is asking the actual difference, then we cannot find out the difference. तो answer must be D. Next question पर आ जाते हैं. चलो. हाँ. In year 2017, the ratio of the male and female is 4:5. Right? 20% increment, 10% increment. 2018 में ये increment हुआ. Okay. ठीक है. Perfect है. Perfect है. ठीक है. तो ये वैल्यू आपकी बहुत बड़ी वैल्यू आने वाली है, कुछ 50,000 40,000 के आसपास ऐसे कुछ आएगा. देन क्वांटिटी 2 है, 8100 सेलिंग कॉस्ट प्राइस है, डिस्काउंट दे रहा है 10% का, मार्क्ड प्राइस आपका उसके बावजूद 15% का इसको प्रॉफिट हुआ, राइट?
देन फाइंड द मार्क्ड प्राइस ऑफ द सोफा. ठीक है. एंड थर्ड पार्ट क्या दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड है. तो देखिए इसको डायरेक्टली कैसे किया जा सकता है, उसको उस पर ध्यान देना. तो ये जो भी वैल्यू है, देखो डीलर परचेज्ड, तो सीपी आपको कितना दे रखा है, सीपी आपको दे रखा है, ये सबसे छोटी वैल्यू यही आने वाली है. तो सीपी क्या दे रखा है, 8100. डिस्काउंट दिया 10% का, तो इसने कुछ बढ़ा के लिखा होगा. और गेन क्या हो रहा है आपको, गेन हो रहा है आपको 15% का, राइट. तो यहां से ये जो भी वैल्यू आएगी वो 10,000 के आसपास हो सकती है, 11,000 हो सकती है, इससे ज्यादा तो नहीं होगा, राइट. सबसे पहले मैं ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी की जो वैल्यू देखने से पता लग रहा है बहुत बड़ी वैल्यूज आने वाली है, राइट. तो पहले वाला पार्ट जो आएगा, देखो इसमें 20% का इंक्रीमेंट कर दोगे, इसमें 20% का इंक्रीमेंट करोगे तो ये 4.8 हो जाएगा. और इसमें अगर 10% का इंक्रीमेंट करोगे तो ये 5.5 पॉइंट से पॉइंट कट हो जाएगा, तो 48. तो ये 48,000 आएगा और एक 55,000 आएगा. तो मेल्स का ये वाली जो वैल्यू आ रही है आपकी 48,000 आ रही है कि नहीं आ रही, राइट. 48,000 आ रही है, सीधे सीधे कैलकुलेट हो रहा है. अब इस वाली वैल्यू को देखो, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज्ड बाय 5%, देन सिंपल इंटरेस्ट इज 12,000 फॉर 5 years. तो 5 साल में 25% का डिफरेंस आएगा. सो 25% इज इक्वल टू 25% ऑफ प्रिंसिपल इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 12,000, मीन्स 1/4. तो प्रिंसिपल आपका कितना आ गया, 48,000. अब 48,000 को आपने 10% पर 10 साल के लिए, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 100%. तो ये भी 48,000 आएगा, राइट. 48,000 आएगा कि नहीं आएगा. और ये 10,000 के आसपास आ रहा है. तो आप मिडिल वैल्यू को रखो 10,000 के आसपास, ये 48,000 और ये 48,000. तो ये इससे बड़ा होगा और ये इससे बड़ा होगा, ऐसे आएंगे, अपोजिट साइन आएंगे. तो आंसर क्या आएगा, सी. सो मेरा जो डीआई का क्लास है ना, आपका 3 दिन होता है. ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं. दिस क्वेश्चन इज फॉर होमवर्क. इस क्वेश्चन से हम कल स्टार्ट करेंगे. चलिए आज का सेशन मैं यही खत्म करता हूं. बाय बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट.